تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری۔ جی مفتی فرحان صدیقی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، بتائیے۔ اچھا جی سہارنپور دیوبند سے نا آپ؟ جی بتائیے۔ اچھا میں نور حسن بول رہا ہوں، پہچانا کہ نہیں؟ پہچان تو لیا ہے لیکن بھاگتے بول رہے ہو آپ، کیا کس لیے چیز ہو؟ اچھا آج میں سوچ رہا تھا کہ بہت دن ہو گئے مفتی فرحان صدیقی صاحب سے بات کیے ہوئے۔ جب بھی بات کر دوں آپ کو کم سے کم 10 مرتبہ چیلنج کر لیا ہے میں نے، پتہ نہیں کہاں رہتے ہو آپ، جب آپ کی مرضی آتی ہے جب کال کرتے ہو، جب مرضی آتی ہے کٹ کے بھاگ جاتے ہو۔ نہیں تو آپ نے تو مجھے کال نہیں کیا نا؟ ارے آپ کا نمبر میرے پاس، نمبر بدل کے کال کرتے ہو آپ، کبھی کسی نمبر سے۔ اچھا میں میرے دوسرے والے نمبر میں بیلنس ختم ہو گیا سر جی، تو میں ڈلوا دوں؟ نہیں تمہارے بیلنس کی مجھے ضرورت نہیں یار مفتی صاحب، کیوں تم اپنا نقصان کر رہے ہو؟ کم سے کم نہیں، مجھے نقصان کی، کم سے کم آپ بھاگتے ہو، بھاگنا تو بند ہو جائے گا، بیلنس ڈل گیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو چلیے کرائیے، بیلنس کرا دیجیے۔ نمبر سینڈ کر دیجیے۔ وہی ہے جو 4054 والا ہے، وہی ہے۔ لیکن میری بات سنیے آپ۔ ہاں نور حسن صاحب، ہیلو جی بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں میں ریچارج تو آپ کا کرا دوں گا، ہاں لیکن آپ پھر شرط یہ ہے چھوڑ کے نہیں بھاگو گے آپ بات کرتے کرتے۔ ارے یار میں کیوں چھوڑ کے بھاگوں گا بھائی؟ ارے یار تاریخ اتہاس گواہ ہے، تم نے جب بھی میرے سے بات کی جب بھی بھاگے ہو آپ۔ یار یہ جھوٹ بولتے ہوئے یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ مفتی ہو کے تم جھوٹ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ ایمانداری کی بات بتاؤ، میں نے چیلنج کیا تھا آپ کو ہمارے اکاؤنٹ پہ مناظرہ کرو، کیا تھا نہیں؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ کتنی بار؟ ٹھیک ہے آج میں آپ سے حاضر و ناظر پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اب خود ہی موضوع گڑ کے خود ہی یہ مطلب میں نے جو چیلنج کر رکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اچھا کون سا؟ اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کون سا؟ ہاں بولیے، میں آپ ہی کے چیلنج پہ بات کرتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑ دیجیے آپ۔ نہیں دیکھیے ایسا مت کریے، میں سنیے میری بات تو آپ پھر بھی نہیں مانو گے، آپ اپنی بتائیے۔ سنیے نا، جو دیکھیے آپ اپنا دل اداس نہ کریں، آپ اپنا بتائیں آپ کس موضوع پہ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یار میں نے جب چیلنج کیا جب تو آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی، اب بار کیا میں نے، اب آپ نے کال کیا نا، آپ بتائیے کس لیے کال کیا آپ نے، کیا بات؟ میں نے اس لیے کال کیا تھا کہ آج میں تم سے حاضر و ناظر پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے ہر چھوٹے سے بڑے تک بار پتہ نہیں کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیے آج میں دیوبند ہی کال کرتا ہوں، اور میں مفتی صاحب سے، مفتی فرحان صدیقی صاحب سے ہی کال کرتا ہوں، کیونکہ وہ تھانوی جی کے شہر کے ہیں، تو ان سے بات ہوگی تو دیوبندیوں کے لیے ایک دلیل قائم ہوگی۔ اچھا تو اس سے پہلے علم غیب پہ ہو جائے، تھانوی جی کے شہر کے ہیں تو جی تھانوی جی کے شہر کے ہیں تو علم غیب پہ ہو جائے، علم غیب پہ تو اعتراض ہوتا ہے نا، تو علم غیب پر کر لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل علم غیب پہ کر لیجیے۔ جی بالکل کریے، بتائیے جی تو بتائیے، آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ نہیں اب دعویٰ پیش کیجیے، آپ پہلے کال آپ نے کی ہے نا، آپ دعویٰ پیش پھر وہی بات، یہ مفتی صاحب یہ تو بات اچھی نہیں ہوئی، آپ نے چنا ہے نا یہ ٹاپک۔ دیکھیے ہم تو علم غیب کے قائل، جو قائل ہوگا وہی تو دعویٰ پیش کرے گا نا، آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہے کیا؟ اچھا آپ نہیں ہیں علم غیب کے قائل؟ نہیں عالم، ہاں اللہ کے رسول کے لیے غیب کا علم مانتے ہو، عالم الغیب مانتے ہو، آپ مانتے ہو نا، آپ دعویٰ پیش کیجیے۔ ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب حضور کو عالم الغیب مانا؟ ارے یار اللہ اکبر، مطلب یار کیا کہہ دوں میں نور حسن صاحب آپ کو۔ دیکھیے ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے میری بات اور آپ کی جماعت کے تمام لوگ اس کو سنیں گے تو الحمدللہ اچھے سے آپ بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ ہنسے نا؟ ہاں تو نہیں سنیے میری بات سنیے نور حسن صاحب، آپ یہ بتائیے علم غیب کے آپ قائل ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے مانتے ہیں علم غیب یا نہیں آپ؟ ارے یہ تو قرآن فرماتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ دعویٰ پیش کر دے، دعویٰ پیش۔ میں کہاں ڈر رہا ہوں جناب؟ ہاں تو پیش کیجیے نا پھر دعویٰ۔ پھر وہی بات، ہاں میں اب دیکھیے میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو بھی کرنا ہوگا، آپ کو ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے۔ پہلے جو ہے پہلے ایک منٹ مفتی صاحب، مفتی فرحان صاحب، میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح سے آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں۔ میں آپ بالکل آپ کی خوشی، جس طرح آپ راضی ہو، جس طرح میں پہلے حضور کے علم غیب ہونے نہ ہونے کے لیے کوئی بات کہوں گا، بتاؤں گا، اسی طرح پھر آپ کو بعد میں
ہونے نہ ہونے کی دلیل پیش کرنی ہوگی. جس طرح میں کچھ کہوں گا اسی طرح آپ کہیں گے, پھر بعد میں آگے جو بات چلے گی پھر بحث ہوگی اس پہ. بالکل. چلیے, میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو, ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے. یعنی ہمارے نبی کو عطائی علم غیب ہے, ذاتی علم غیب نہیں ہے, نہ کل علم غیب ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, بعض ہے یا کل, اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. جی, بعض علم حاصل کیا ہے, کل جمی ماں کانا وما یکون کا علم حاصل, ماں کانا و ما یکون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل علم غیب میں نہیں آتا. اچھا جی ٹھیک, یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا. ارے آپ کا کیا ہے, آپ بول دیجیے نا. ہاں ٹھیک ہے, میں بولوں گا نا. میں آپ اگر ایک منٹ, میں کہتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور اس قرآن سے ثابت کروں گا میں انشاءاللہ. جی بالکل. مگر ایک منٹ پہلے میرا سن لیجیے. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اتنا ہی علم میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسمان کا, زمین کا, سمندر کا, پہاڑ کا, یعنی دنیا کی ہر شے کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ہم جو اب بات کر رہے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے رسول کو ہے یا نہیں, اس کی بھی وضاحت کر دیں. ہاں جی, اس کا بھی علم ہے اللہ کے رسول کو. جی. اچھا, بہت خوب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دنیا اس طرح ہے جس طرح کے کوئی انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہو, جس طرح کے کوئی شخص چاول کو. سنیے, پہلے بات سن لیجیے, سمجھ لیجیے مفتی صاحب, ایسے بات نہیں ہوتی, مزہ نہیں آتا ایسے. بیچ میں بولنے والا مجھے بہت سخت جو ہے. سنیے میری بات, میں بول نہیں رہا ہوں بیچ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو آپ کی بات مثالوں سے سمجھوں. آپ نے بول دیا, میں سمجھ گیا. ارے جناب, میں تمہارے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں, میں تو عوام اہل سنت کے لیے کام کرتا ہوں, تو میں بات کو سمجھاؤں گا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, مجھے بات میرے سے کر رہے ہو نا, ان کو سمجھاؤ. ارے جناب سنیے, بات میں آپ سے کر رہا ہوں, مگر میں کس کے لیے کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھ رہے ہو آپ. سنیے میری بات, آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنا عقیدہ بیان کریں, میرا جو عقیدہ ہے میں اپنا عقیدہ بیان کروں, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ارے چپ ہوں گے جب یہ تو بیان کروں گا نا میں. آپ کا پورا ہو گیا نا دعویٰ, ہو گیا پورا آپ کا دعویٰ. آپ بیچ میں سے ٹوک دیتے ہو, روک دیتے ہو, یہ کون سی انسانیت ہے یار؟ آپ ٹھیک ہے, میں چھپوں, جب آپ کا دعویٰ پورا ہو جائے گا مجھے بتا دینا. پھر وہی بات, میں دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں. مجھے کیوں سمجھا رہے ہو آپ؟ جس طرح کوئی بندہ چاول بینتا ہے کسی تسلے میں, کسی برتن میں, تو اس کے سامنے تمام چاولوں کے دانے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ارے میری بات تو سنیے, مجھے آپ یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پوری دنیا آپ نے جب یہ کہہ دیا ایسی ہے جیسا کہ ہاتھ میں اللہ کے رسول کے, تو بس بات پوری ہوگی. چاولوں کے دانے کی مثال کیوں دے رہے ہو آپ؟ سمجھا رہا ہوں نا آپ کو, کیونکہ آپ کے لوگ سمجھتے ہیں. سنو, ارے یار سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں. یار نور حسن بھائی, آپ کو پھر میں کہوں گا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. دعوے میں اتنی مثالیں نہیں پیش کرتے ہیں, دعویٰ مختصر ہوتا ہے, آپ کو بات کرنے کا ہی نہیں طریقہ پتا ہے. خیر, اب اپنا دعویٰ پیش کریں. میرے اللہ نے, میرے رب نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ اب دیکھیے میرا دعویٰ سن لیجیے. آپ کا دعویٰ مکمل ہو گیا؟ ارے مکمل کیا, میں نے اپنا ایک عقیدہ بیان کیا ہے, یہ بولیے. یار آپ ڈر کیوں رہے ہوئے کہتے ہوئے کہ پھر وہی بات. چلیے اب میں بتاؤں, بولیے. دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء, جب تک انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم نہیں آتا, غیب کی خبریں نہیں آتی, تب تک کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے. نبی میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں, عام آدمی کو اس کا نہیں پتا ہوتا, اللہ بتاتے ہیں. اس بات کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے اکابر میں اگر آپ کسی بھی کتاب میں ہمارے اکابر کی یہ لکھا ہوا دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں محشر سے, قیامت سے متعلق, دجال سے, جس طریقے کی باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں, اگر کسی اکابر نے اس کا انکار کیا ہو, میں بھی مسئلہ کے دیوبند کو چھوڑ دوں گا. اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے اکابر بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور تمام انبیاء کو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں, اس لیے کہ بنا غیب کا علم عطا کیے کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا ہے. نبی بنتا ہی جب آدمی جب اس کو غیب کا علم اللہ دیتے ہیں, فرشتے کے واسطے سے دیں یا خود بظاہر الہام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. تو یہاں اختلاف تو اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جمی ما کانا وما یکون کا علم, آپ نے کہا ہے ذرات کا علم, دنیا کی ہر شے کا علم اللہ کے رسول کو ہے. ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ تمام علوم اللہ نے عطا کیے جو آپ کی شان تھے, اور
जितने इल्म अल्लाह ताला ने जो उलूम अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए अल्लाह ने, वो दीगर कायनात में न तो किसी नबी को अता हुए न किसी वली को, और कायनात में कोई उनके हम पल्ले नहीं है इल्म में जो अल्लाह ताला ने। लेकिन जमी वमा काना वमा यकून का इल्म यानी जर्रात का इल्म जैसे कह रहे हैं आप, पूरी दुनिया हाथ में है और हम बात कर रहे हैं, इसका भी इल्म अल्लाह के रसूल को है। ये तो अल्लाह ताला की सिफत है। जो तुम नबी के साथ खास कर रहे हो, ये तो अल्लाह ताला का सिफत है, हर चीज को जानना, हर चीज का इल्म रखना। और अगर आप चलिए, मैं अपना दावा मुख्तसर करके आगे जब बहस चलेगी उसके दलाइल में मैं और दलाइल जिक्र करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जो इख्तिलाफ है सिर्फ इसी बात में, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को ये तमाम उलूम नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं इसका इल्म नहीं है अल्लाह के रसूल को। आपको पता कैसे चला कि इसका इल्म हुजूर को नहीं है? ये तो कुरान शाहिद है इसका, तो गैब का इल्म अल्लाह के रसूल को नहीं है। कुरान की बेशुमार आयत अल्लाह की, हजरत आयशा की बुखारी शरीफ की मशहूर रिवायत है बिल्कुल, कि कोई अगर गैब का दावा करे अल्लाह के रसूल को, वो बिल्कुल झूठा कज़्ज़ाब है। आलिमुल गैब का तो गैब का इल्म का तो कोई मतलब, जो अल्लाह ने अता किया है बज़रिए वही, वो तो अल्लाह के रसूल को, उसका तो कौन इनकार करता है। हमारे काबिर में से किसी एक की भी किताब में अगर दिखा दे, अभी मसला के देवबंद को छोड़ दूंगा। मसला ही नहीं, मसला तो जब बनता है, मसला तो तब बनता है जब आप ये कहते हो कि अल्लाह के रसूल को ज़र्रात का और हम जो बात कर रहे हैं हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं, सब चीज का इल्म है। फिर अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क क्या रहेगा, मुझे बता दीजिए। तो जनाब, हाँ, तो ये दावा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है या अगर आपके किसी उलमा ने? भाई मेरी बात, एक मिनट, हम जो कर रहे हैं, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, या मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी मुसलमान मदीना शरीफ या मक्का शरीफ या किसी और दिगर जगह पे, कोई दूसरी जगह पे जा रहा है, या मैं तुमसे यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका इल्म आपके बकौल हुजूर नहीं जानते, यही दावा है ना आपका? इसका इल्म तो दूर, बहुत सारे वाकयात आपको खुद मालूम होगा। अल्लाह के रसूल के जमाने के वाकयात ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल के, वो सब चीजें छोड़िए, किसी चीज का मालूम कर लेना या किसी चीज का ना बताना ये ना जानने की दलील नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में बच्चों को कुछ याद करा के मतलब उलट पलट करके पूछता हूँ, मालूम करता हूँ, ये कहता हूँ सही बता। सुनो मुफ्ती साहब, देखिए मैं काफी टाइम से चुप हूँ, खामोश हूँ, आप बोले चले जा रहे हो, ये कौन सी इंसानियत है? आप मुफ्ती होकर इतना घबरा रहे हो, ये है करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बात करिए, आप बात को घुमाइए मत, सीधी बात करिए, बताइए अपनी बात जल्दी। मैं आपसे जनाब सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि ये चीज जो आप कह रहे हैं कि हुजूर नहीं जानते कि हम और आप बात कर रहे हैं, या मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाऊं या मदीना शरीफ खास तौर से जाऊं, तो उस चीज का इल्म मेरे आका को होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ आपका अकीदा है या फिर आपके बुजुर्गों का भी अकीदा है? देखिए मेरी बात को मदीना शरीफ पर न ले जाएं, इल्म गैब की बात चल रही है, मदीना शरीफ पे ना ले जाएं। सुनिए, आप जाने सफर की बात क्यों लेकर आ रहे हैं आप? अरे सुनिए मेरी बात, सफर भी तो अब हो रहा है ना, उस टाइम थोड़ी हो रहा है, ये भी तो अल्लाह के नबी से छुपा हुआ है ना मेरे भाई। नहीं, एक बात मैं वाजे कर दूं, सुनिए। देखिए मुफ्ती साहब, मैंने कई चीजें इसलिए बयान की, सुनिए मुफ्ती साहब, ताकि लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अवाम अहले सुन्नत के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। पूरा अकीदा बता दें जरा मुकम्मल करके कि ये अकीदा सिर्फ आपका है कि हमारे नबी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम मुसीबत में हैं तो हमारी खबर लेने हुजूर आएंगे या नहीं आएंगे, या हमारे किसी अमल की या हमारे किसी परेशानी की खबर अल्लाह के नबी को है या नहीं है? तो चुप हो जाओ ना, तो वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं यार। चुपिए, पहले सुन लीजिए ना, तसल्ली से प्यार से बात लीजिए। जब आप बोले थे मैं खामोश था, ये कहाँ की इंसानियत है? आप आलिम होके बात करने का तरीका नहीं जान रहे हो। अरे यार, आपने सवाल कर लिया तो चुप हो जाइए। फिर वही बात दे रहा हूँ, जब मैं बारहा कह रहा हूँ मिसालें मत दो मुझे, मिसालें मत दो, बात करो ना डायरेक्ट। मिसालें तो कुरान ने भी दी हैं जनाब, मिसालें मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो समझाने की बात कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह की बात, मिसालें तो कुरान ने भी दी हैं। अरे जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, एक मिनट चुप हो जाइए ना। बोलिए। पूछ रहे ना, हाँ तो चुप होंगे तभी तो बोलूंगा ना, मैं आगे की मिसालें दे रहा हूँ। हाँ। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ ना अपनी तरफ से कोई बात, मैं अपने मसलक की तर्जमा नहीं करता हूँ। हाँ, समझ गए आप? हाँ,
हाँ, तो बस मैं अपने मसलक की तर्जमानी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता हूँ मैं। हाँ। मेरी बात में मैंने दावे में जो लास्ट बात पेश की थी उसका जवाब दे दीजिए। अब मैंने कहा था कि अगर ये अकीदा नबी के लिए माने तो अल्लाह में और नबी में क्या फर्क रह जाएगा, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। इसी से ही मुश्रिक अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब है अल्लाह की अता से, और अल्लाह ताला को जाती है। मतलब जो उलूम अल्लाह के वही नबी के भी है। अल्लाह का जाती है और रसूलुल्लाह का अताई है, ये फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? सिर्फ यही फर्क है, वरना जो उलूम अल्लाह के वही नबी के हैं। यही फिर वही बात नहीं, अब बता दीजिए आप मुफ्ती बता साहब, दीजिए क्या है। सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये देखिए, अगर ये आपका अकीदा नहीं है और मेरा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी इल्म रखते हैं कि मैं और तुम दोनों बात कर रहे हैं, एक मिनट, मैं और तुम दोनों बात कर रहे हैं, या मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ तो मेरे नबी जान रहे हैं हाँ के फला बंदा आ रहा है, इसका इल्म हुजूर को है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दें। अरे नहीं, जब आप बता दिया एक बार तो आपको बार बार हाँ ना करनी तो चाहिए। इस तरह का अकीदा रखने वाला इंसान काफिर है या मुसलमान? बस जवाब दे दीजिए। मुशरिक अल्लाह की सिफात में शरीक कर रहा है नबी को। अच्छा, मुशरिक है। बिल्कुल। तो सिर्फ मैं ही मुशरिक होऊंगा या आपकी जमात के जो उलमा हैं जिन्होंने ये अकीदा बनाया है वो भी मुशरिक होंगे? हमारी जमात के उलमा, जब बोल दिया एक बार हमारी जमात के उलमा कोई खास चीज है क्या अल्लाह के? हमारे उलमा का तो ये अकीदा है ही नहीं कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म हासिल है। किसने कहा? हैं? किसने कहा? अभी दावा में पेश किया ना मैंने। और गैब से मुराद वो गैब कह रहा हूँ मैं जो अल्लाह ने अता किया है, उसका तो मैंने पहले ही नफी कर दी है जब मैंने दावा पेश किया था। आप दावे को याद रखें मेरे, आप बाद में फिर भटकेंगे इधर उधर। मैंने जो दावे में पेश किया है, मैंने कहा है कि बगैर इल्म गैब के तो कोई नबी बनी नहीं। वही बात को तोड़ मरोड़ के पेश क्यों कर रहे हो? जब इल्म गैब हुजूर को हासिल है ही तो ये भी तो गैब की बात है ना। मैं तुम जो बात कर रहे हैं ये भी तो गैब की बात है। जो अरे वो इल्म गैब नहीं यार, फिर वो इल्म गैब वो जो अल्लाह ने अता किया है, जो अरे वही ये भी तो अल्लाह ताला ने अता किया है। अल्लाह ताला ने उनके सामने पूरी कायनात को कर दिया, फिर उनसे छुपा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, फिर वही बात, अस्तगफिरुल्लाह बात पढ़ो पहले। क्या इस पर जो है पुख्ता दिलेरी के साथ, पुख्ता दलील के साथ तुम जो है इस पे कोई हुक्म लगाओ, इंशाअल्लाह मैं अभी तुम्हारी फज़ाइल आवाज़ से तुम्हारा ये शिर्क और कुफ्र अभी साबित करता हूँ। मुशरिक लगा दिया है, मुशरिक साबित करिए। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है, जुमे का टाइम हो रहा है, अब मैं जल्दी से। ए भागना मत भाई, ये अब जुमे का टाइम का नाम ही मत लो अभी तुम। अभी मैं बता दूं कितना टाइम है जुमे में, मुद्दे पे होना यार, टेंशन मत लो, अभी बता देता हूँ जनाब। अभी तो अजान होने में भी 15 मिनट है, अगर 12:30 पे अगर आपके यहाँ अजान होगी तब, नहीं तो 1-1:30 बजे अजान होगी तुम्हारे यहाँ। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे यार, भाग। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुद्दे पे आओ जनाब, आपकी ये किताब है, क्या है? फज़ाइले आमाल। जल्दी बताइए, क्या किरात कर रहे हो यहाँ से? किरात नहीं कर रहा हूँ, समझा के बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसमें भी समझाने की बात है, फज़ाइल अमाल, ये भी समझाने की बात है यार। क्या फिर वही बात करने का भी सलीका है आपको, इसमें कौन सी समझानी? जल्दी बताइए। तुम यार मानते क्यों नहीं हो किसी भी बात को? ये घुमाने फिराने की बातें करते क्यों हो तुम? मुझे पहले तो ये बताओ। भाग रहे हो, अब फज़ाइल अमाल बताइए। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट मुद्दे पे आइए, घुमा फिरा रहे हो, जल्दी। तो बस अब बात को सुन लीजिए। जब मैंने कह दिया, आपने इस पर शिर्क का फतवा लगा दिया, ये फतवा जो है अभी बंद तो नहीं कर दोगे, खत्म तो नहीं कर दोगे? अरे जल्दी आगे बताइए यार। चलिए जनाब सुनिए, किताब का नाम है फज़ाइले अमाल, और जो मेरे पास हवाला है उसका सफा नंबर है 789। अच्छा, ठीक है जनाब। और फज़ाइले दरूद इस बाब का नाम है, क्या है? अरे बताइए, फज़ाइले दरूद। बताइए। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत कसरत से जो है दुरूद पढ़ा करते थे, समझे जनाब? अच्छा। हाँ, खैर बात बड़ी लंबी है मगर मैं कुछ नीचे से बताऊंगा, ठीक है? बहुत लंबी बात है। जब हज के बाद मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का इरादा किया तो अमीर मक्का ने ख्वाब में देखा, क्या देखा? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको ये इरशाद फरमाया कि उसको यानी जामी को मदीना ना आने दें। अमीर मक्का ने मुमानियत कर दी, मगर उन पर जज्ब शौक, एक ऐसी कैफियत के, मतलब जो दिल के अंदर की कैफियत होती है, जो जज्बा होता है, जो एक शौक होता है, एक दिल के अंदर के जो कैफियत
وہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں. بہرحال اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. امیر مکہ نے دوبارہ خواب میں دیکھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا وہ آ رہا ہے, اس کو یہاں نہ آنے دو. امیر نے سمجھے ان جن کو مطلب حضور نے خواب میں دکھایا, امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑ کر بلایا, ان پر سختی کی, یعنی انہیں مطلب جانے سے روکا گیا, ان پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا. اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں ہے, یہ کوئی مجرم نہیں, یعنی حضور یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا. کہتے ہیں حضور کہ یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار ہیں, اس کے کچھ اشعار کہے ہیں, اس نے کچھ اشعار پڑھے ہیں جن کو یہ یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پڑھنے کا ارادہ ہے. الحمدللہ, کیا شوق ہے, کیا عاشق رسول کی ایک تمنا ہے, ماشاءاللہ پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافہ کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا. اس پر اس کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام سے نوازا گیا. جناب اب ذرا مجھے بتایا جائے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق رسول کو آنے کا کیسے جو ہے پتہ لگایا کہ کوئی عاشق رسول آ رہا ہے, اور اس نے اشعار بھی کچھ یاد کیے ہیں اور جو میری بارگاہ میں آ کے پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا ہے اور پڑھے گا, اور اگر اس نے پڑھے تو مجھے قبر سے اٹھ کر قبر سے نکل کر جو ہے مسافہ کرنا پڑے گا. یہ تمہاری فضائل اعمال, لگاؤ مشرک کا فتوا. ٹھیک ہے, جواب دے رہا ہوں میں, اب چپ ہو کے سننا میری بات جس طرح میں نے سنی ہے. جھول مول یہاں کچھ ہونی نہیں ہے, تم نے لگا دیا فتوا. یہاں جھول لانی ہی نہیں ہے, اس کے دل کی جو کیفیت ہے عاشق رسول نے جو یاد کیا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں. فتوا تو تم نے لگا دیا, اب باتوں کو گھماؤ گے تو اس تمہارے بات گھمانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بولو کیا کہنا چاہتے ہو. ہاں تو چھپ ہو کے سنو نا, بات گھماؤ گے, بات آگے کی باتیں کر رہے ہو, چھپ ہو کے سنو. چپ نا, دیکھیے میری بات سنیے نور حسن صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شخص کے بارے میں پتہ لگ گیا آنے کا, اور انہوں نے امیر کو خبر دی, جو واقعہ سنائے, یہ تو میرے بھائی نص سے ثابت ہے. اس میں یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو, یہ تو نص سے ثابت ہے کہ اللہ کے میں جو یہاں بات کر رہا ہوں جناب, ایک منٹ یہ قرآن, ایک منٹ یہ قرآن کی کون سی نص سے ہے, کون سی آیت میں آئی کہ وہ جو ہے ایک عاشق رسول جا رہے تھے اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں. بیچ میں کیوں بول رہے ہو, کون سی نص سے ثابت ہے, وہ نص بتاؤ نا مجھے, دلیل پیش کرا رہا ہوں میں. جھوٹ مت بولو, جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مشرک کا فتویٰ تم نے پہلے لگا دیا, تم نے مولوی چھپڑیا کو مشرک ثابت کر دیا. میرے بھائی اب چھپ ہو کے سنو گے نہیں, فتویٰ تم نے لگا دیا ہے. اب عوام فیصلہ کرے گی نا, عوام میری جج ہے اور فیصلہ عدالت میں جج کو ہی کرنا ہوتا ہے. اب آگے بولیں, فتویٰ تم نے پہلے لگا دیا, اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا. بولیے آگے کی بات, بولیے نا. مفتی صاحب بھاگ گئے کیا؟ ارے مفتی صاحب بھاگ کے پھر دوبارہ کال کر رہے ہیں, بتائیے, میں ریسیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ارے جناب یہ مفتی صاحب پھر سے کال کاٹ رہے ہیں, بتائیے یہ ریکارڈنگ خراب کرائیں گے کیا؟ مفتی صاحب بھاگ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے دیوبند کے مفتی, کیا نام ہے ان کا؟ مفتی فرحان صدیقی. مفتی فرحان صدیقی. اس نے ایک اصول قائم کیا, اپنے جیب سے نکالا اور منہ سے بک دیا کہ ذہن جس کا گندا ہوتا ہے نا اس کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے, اور اس کے منہ سے جب بھی نکلتا ہے تو بدبودار ہی بات پہ نکلتی ہے. اس نے ایک بہتان باندھا کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما رہے ہیں یا نہیں. اب ان کی فضائل بوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضور کی شان میں نعت شریف لکھی, کچھ اشعار لکھے, تو نعت شریف اور اشعار تو گھر میں لکھے, حضور کو معلوم ہے کیا لکھا, اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شخص اگر یہاں آ کے میری قبر مبارک پہ, میری مزار مبارک پہ وہ پڑھے گا تو مجھے مجبوراً مسافر کے لیے ہاتھ نکالنا پڑے گا, اور اس سے کتنا بتا ہوگا. اب یہ فضائل اعمال میں ان کے باپ مولانا زکریا جو لعنتی ہے اس نے لکھی ہے
अब इसी के फतवे से मौलाना जकरिया हो गए मुशरिक। अब ये बड़े बड़े दावे कर रहा था कि तुम फोन काट के भागते हो, फोन काट के भागते हो, और आप सब तमामी हजरात देख चुके हैं कि फोन काट के कौन भाग रहा है। तो जनाब इनके अकीदे से बराह करम अपने आप को बचाइए। ये जितने भी बड़े मुफ्ती बन जाए, उलमा बन जाए, उसामा बन जाए, थुमामा बन जाए, इनको तौबा की जरूरत है और इनको कलमे की जरूरत है, इनको ईमान की जरूरत है, ना ही डिग्री की जरूरत है। तो बराह करम इनसे अपने ईमान को बचाएं और खुद फैसला करें कि किस कदर इनका अकायद जो है वो गंदा है और किस कदर कुफरिया अकायद है। तो ऐसे काफिरों के पीछे नमाज पढ़ने से बचें और जाने से बचें। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि इन लोगों के ऊपर नमाज फर्ज है ही नहीं, इन लोगों के लिए नमाज ही नहीं है, क्योंकि इनकी तो नमाज नहीं होती। ये तो 5 बार जाके शिर्क करते हैं नमाज में। अच्छा रुको, कॉल आ गया दोबारा से। हेलो जनाब, क्यों भाग गए थे? मैं भागा था। है जी? हेलो हेलो, बोलिए ना। हेलो मुफ्ती साहब, हेलो। लगता है फिर चले गए। हाँ चले गए। मुफ्ती साहब जब हिम्मत नहीं है तो फिर क्या मैं करूं क्या इनको कॉल? करो। 1 मिनट यार, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग कट जाए, मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार ऐसे हो जाता है ना। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग झूठे मुझे कॉल मत कर लेना। हाँ जी जनाब, क्यों कॉल नहीं उठा रहे हो? बड़ा देर लगा रहे हो कॉल उठाने में। कॉल उठा रहे हो बेवकूफ कहेंगे, बात को सुनने से पहले तूने फोन काट दिया। आज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्यों काटा फोन? झूठ पर अल्लाह ताला की लानत हो। बोलो आमीन। फोन मुफ्ती साहब आपकी गुफ्तगू पहले फोन क्यों काटा है? आपकी गुफ्तगू तकरीबन 50-60 लोग सुन रहे हैं। दिखाने के लिए तो मुफ्ती साहब आपकी गुफ्तगू 60-70 लोग सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब देवबंद की इज्जत बचा लो। और मुफ्ती साहब आपकी गुफ्तगू। अरे लड़ाई मत करो यार, लड़ाई मत करो जमशेद भाई, लड़ाई मत करो, ऑडियो पूरी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे गुफ्तगू। हाँ मुफ्ती साहब, अब अपनी बात करो, क्या कहना चाहते हैं? इस बात का जवाब जमशेद भाई चुप जाओ। अच्छा जिसने कॉल काटा उससे अल्लाह की लानत हो, आमीन बोल दो। अरे इसे बोल लेना, नूर हसन को। नहीं आप जिसने फोन काटा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो, कहो आमीन सब मिलके। जमशेद भाई तुम कहो, मैं आमीन बोलता हूँ। आमीन तुम आमीन। तुम्हारे लिए कसम की जिसने फोन काटा है अल्लाह की उस पर लानत हो, आमीन। लानत हो, 1000 लानत हो, लाख लानत। आमीन सुम्मा आमीन। कारोबार बना रखा है तुमने बेवकूफ। अरे भाई अब कारोबार पे मत आओ, देखिए अब कारोबार पे मत आओ, जो तुम्हारा हकीकत है उसी को बोलो जी। फोन क्यों? जिसने यूट्यूब को कारोबार बना रखा है उससे अल्लाह की लानत हो। आमीन सुम्मा आमीन। जिसने यूट्यूब को कारोबार बना रखा है उससे लानत हो। देखिए आप अपनी वजाहत कीजिए, ये इधर उधर बातें ना भगा रहे। मुफ्ती साहब 50 साल बस पहले पागलपन के दौरे फरहान से की। मुफ्ती साहब 50-60 लोग सुन रहे हैं आपकी रिकॉर्डिंग को। आपकी गुफ्तगू वजाहत करो यार, खामखाई की बकवास मत करो, अपनी वजाहत करो। अपनी वजह फोन क्यों काटा मुझे? जमशेद भाई तुम चुप हो, जमशेद भाई तुम चुप हो, इसकी वजाहत करने दो जी। मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब जरा वजाहत करो। फोन क्यों कट किया है तुमने, मुझे बताइए पहले। हमने तो कहो कि एक बात कह दी, अल्लाह ताला की लानत हो उस पर जिसने फोन कट किया हो। तुमने किया हो तो तुम पर हो, हमने किया हो तो हम पर हो। उसके बाद मैंने कॉल की तो कॉल भी नहीं उठाई आपने। माज़अल्लाह, खैर रिकॉर्ड है सब, मैंने रिसीव किया, तुम भाग गए कॉल कट करके। अरे मुफ्ती साहब आपकी रिकॉर्डिंग 50-60 लोग सुन रहे हैं, अपनी इज्जत को बचाओ। अरे 50-60 नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तुम इज्जत के लिए बात कर दी तुम्हारी। खैर तुम्हारी दुनिया में देवबंदियत के सारे लोग सुनेंगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा नंबर डालूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो पे, तुम देवबंद के रहने वाले हो ना, नहीं तो जनाजा निकल जाएगा तुम्हारे देवबंद के मुफ्ती का। अच्छा इसका जकरिया मुफ्ती झकड़िया को तुमने, मौलवी झकड़िया को मुशरिक साबित कर दिया। मुशरिक साबित कर दिया झकड़िया का। तुमने मेरी बात सुनी कभी? अब सुना दो। अच्छा तो अब सुना दो ना, मैं बोल जो रहा हूँ, अब सुना दो।
क्या? अरे वैसे जाहिल हो, आज के बाद तो मुझे कॉल मत करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर बार इस बात पागल हो गया का डॉक्टर। मतलब नहीं है, 2 महीने से ऐसे ही भाग तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं कॉल काट के नहीं भागता हूँ, क्या? और तुम कॉल काट के भागते हो। नूर हसन कब भागा तुम्हारे किसी मुफ्ती के सामने कॉल काट के? लगा रहे हो यार, क्या तुम्हारी झाल। अच्छा, तुम अपना अकीदा बयान करो ना। तुमने तो अपने मुफ्ती झकड़िया को बयान कर दिया ना मुशरिक। कोई बात नहीं है। बोलो बोलो, बात करो ना, बात करो, प्यार मोहब्बत से, अदब और एहतराम से बात करो। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आपने ये मुशरिक वाला वो फजल अमल का वाक़या सुना, उसके बाद जब मैं वजाहत कर रहा था, मैंने बोला आपको क्या वजाहत की तुमने? ये तो कोई वजाहत नहीं की, फोन काट हदीस दिया से मौलाना साबित है। साहब। ओ मुफ्ती साहब, कौन सी हदीस से साबित है? चलो वो हदीस बताओ, मैंने कहा दी है। आप कौन सी हदीस से साबित है? हदीस की तारीफ करो, नहीं, हदीस की तारीफ करो। हदीस किसे कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अब हदीस की तारीफ। हाँ बिल्कुल, हदीस की तारीफ करो। हदीस किसे कहते हैं? अरे इसको किसने मुफ्ती बनाया? तुम्हारी मेरी बातें हदीस है? तुम्हारी मेरी बातें हदीस है या फिर किसी बुजुर्ग की बातें हदीस है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, निसाई की हदीस है। पढ़ो हदीस पढ़ो। अरे हदीस पढ़ो। पागल कहीं के, अगर सुन हुजूर की बात हदीस, हुजूर की बात हदीस है या तेरी और मेरी बात हदीस है? अरे बेवकूफ कहेंगे, मैंने कब कहा है मेरी बात हदीस है? यार फिर वही उल्टी बात कर रहे हो। मैंने हदीस से कहा साबित करो। हदीस से अरे साबित हुजूर के करो। विसाल के बाद का वाकया है ये, तो हदीस कहाँ हुई? जो वाकया तुमने सुनाया है, तो ये हदीस, तुम जो अरे बोल रहे हो इस वाकये, अरे ओ तुम तो पागल। फिर हदीस की तारीफ करना कि हदीस किसे कहते हैं? हुजूर की हदीस हदीस है, हुजूर की बातें हदीस है, तुम्हारा मेरा कल हदीस है। मैंने हदीस सुनाई कभी अभी? सुना सुना सुना। यार तुमने तो तुम्हारा बिल्कुल जो अबू जहल का दिमाग भ्रष्ट रो मत, रो मत, रोने से काम नहीं चलेगा, बात कहो। मैं रोने वाला हदीस नहीं सुनो, हूँ। हदीस सुनो, मैं हदीस रोने सुनो। वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। हदीस सुनो, हदीस सुनो। क्या? हदीस सुनो। अरे पहले यार तुम बेवकूफ हो गया। अरे हदीस सुनाओ ना, हुजूर ने कौन सी हदीस पे फरमाया? डाल के बुदक चुगत घामत हदीस सुना। रहने दो जमशेद भाई, उसे बात करने दो, नहीं तो ये भाग जाएगा फिर से। इसकी रिकॉर्डिंग 50-60 देवबंदी सुन रहे हैं, इसको गालियां बक रहे कोई हैं। बात नहीं है, कोई बात कभी से कोई बात नहीं। अब अरे लाइव चल रहा है बेटा, ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है यूट्यूब पे मेरे लाल। तेरी हदीस सुना पता यार जमशेद भाई खुच्चड़ मत काटे करो यार, मैं इस ऑडियो ऐसी गुफ्तगू सही नहीं समझता हूँ। खामोश होगी बात। तो पहली बात तो नूर हसन साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं औरों से तो जाहिलों से बात नहीं करता हूँ, ये कुछ ठीक से बात करते हैं और आज ये भी जाहिल हो रहे हैं, ठीक से नहीं बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ये नूर हसन साहब सही अंदाज से बात करते हैं यार, एक मिनट भी तो होना चाहिए बात करने की। अच्छा एक काम करो मुफ्ती साहब, 1 मिनट आप ले लो, 1 मिनट नूर हसन को ले लेते हैं, देने में मैं टाइम देख रहा हूँ। 1 मिनट सुनिए मेरी मैं बात। टाइम देख रहा हूँ, 1 मिनट आप ले लो, 1 मिनट नूर हसन। कौन है बेवकूफ कहेंगा? अरे फालतू बात मत करो, ये कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हो मुफ्ती हो के, आलिम हो के यार? ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रहा है? किसे ले गए हो आप? ये मैं कह रहा हूँ 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट नूर हसन बोल लेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है, कोई मुझ पर दरूद पड़ेगा, भेजेगा, तो उसको फरिश्ते की जमात घूमती रहती है, और एक फरिश्ता मेरी कब्र के पास भी रहता है। अरे वहाँ दरूद नहीं पड़ा है, वहाँ कुछ अशार लिखे हैं, वहाँ अशार है, और यहाँ मैं और तुम मेरे नबी की वकालत कर रहे हैं। सुनो, यहाँ तुम और मैं दोनों मेरे नबी की वकालत कर रहे हैं। वो भाई फजाइल दरूद का ही जो वाक़या सुना है तुमने, वो फजाइल दरूद की मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। अरे यहाँ मैंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने दरूद लिखा है, दरूद पढ़ा है, उन्होंने कुछ अशार लिखे हैं यार। अशार लिखे। अच्छा एक बात बता मुफ्ती साहब, तुम्हारी भी किताब से साबित है कि अशार है, कुछ शेर लिखे हैं, कुछ अशार हैं। पढ़ा था तुमने? फिर वही बात। नूर भाई रुको। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम्हारी ये फजाइले अमाल की एक इबारत हो गई। सुनो ना मुफ्ती साहब, सुनो ना, क्या ये तो फजाइले अमाल की इबारत हो गई। अच्छा ये बताओ, देवबंद में जब झगड़ा हुआ था तो कासिम नानोती को कब्र में जाके किसने बताया कि वहाँ झगड़ा हो गया? वो कब्र से उठ के आके समझौता करने के लिए आया। जी हाँ मुफ्ती साहब, बात सुन, मेरी बात सुनिए। मौजू क्या करना है? मौजू पर ही है, मौजू पर भी नहीं, मौजू की तो बात है। मरने के बाद तुम्हारे कासिम नानोतवी को किसने बताया? जो बात चल रही है उसके तो बात करो। कासिम नानोतवी को कब्र में किसने बताया? देवबंद में झगड़ा हो गया, वो समझौता कराने आया यार। शिकायत है नाम साहब किस लिए बैठे हो आप? ये किसी जाहिल को लेके आए हो? नहीं सही सवाल किया है, जाहिल अलग सही सवाल किया। लेकिन मसला जो बात चल रही है उसका हदीस मैंने सुनाई है, उसका अब खामोश क्यों हो गए तुम? अरे तो दुरूद का वाक़या, तो यहाँ अशार है, वहाँ दरूद शरीफ नहीं पढ़ा गया है, यहाँ अशार है, कुछ अपने दिल में उन्होंने। अरे यार हंसने से कोई फायदा नहीं होगा साहब, तुम दारुल उलूम देवबंद के हो और देवबंदी हो। तो यहाँ तो हमारा अकीदा वाज़ेह हो गया ना। हमने कब कहा कि अल्लाह को ज़ाती इल्म गैब है? अगर रिश्ते से भी बताया तो नहीं हम रसूलुल्लाह के लिए ज़ाती इल्म।
यहाँ तो साबित हो गया ना हमारा दावा गधे। क्या क्या साबित हो गया? हमने क्या दावा किया था? ये अल्लाह के रसूल का तो नहीं इल्म है। तूने क्या दावा किया था कि हम जो बातें कर, सुनो, तूने क्या दावा किया था कि हम जो बातें कर रहे हैं, सुनो, तुमने जो दावा किया था कि अल्लाह के रसूल को ये इल्म नहीं है जो हम बात कर रहे थे। अल्लाह के रसूल को जब ये इल्म नहीं है, आपको ये नहीं पता जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, चल रही है यहाँ पे। हाँ सुनो, की बात चल रही है। मिसाल के तौर पे मैंने अल्लाह के रसूल की शान में नाज शरीफ लिखी, कुछ अशार लिखे, अच्छा ठीक है, मैंने लिखे यहाँ पे, और अल्लाह के रसूल को वहाँ मालूम है। अब वो क्या कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो फिर मैं और आप देखिए, शमशेद भाई मैंने शॉर्टकट में इनसे एक ही बात कह दी थी कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात को ऐसे कर दिया है जिस तरह के कोई शख्स अपनी हथेली को देखता है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा, टेंशन मत। अगर मैंने ये हवाला दे दिया, सुनिए, अगर मैंने ये हवाला दे दिया तो देवबंदी छोड़ोगे? अगर पकड़ के चक्कर नहीं दे रहा, हवाला देना तू। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, किताब खोल रहा हूँ, किताब खोल के अल्हम्दुलिल्लाह अभी बता रहा हूँ। देना तू, बेवकूफ है कहीं तू। देखो भाई, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, एक मिनट के लिए बदतमीजी नहीं। हदीस, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस पेश करूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? पढ़ो जल्दी। अगर मैंने ये हदीस पेश कर दी, पढ़ो ना। ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा, ऐसे थोड़ी, बिल्कुल वही समझ रहे हो क्या मुझे? ऐसे एकदम से तुम्हें आसानी से पढ़ के बता दूं? पहले कुछ वादा कराता हूँ, कसम खा के यहाँ तुम वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें ये हदीस बता दी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुनिया, ये कायनात मिसले कफ कर दी है, छोड़ के मत भाग जाना, कफे मिसल बना दिया है इस दुनिया को। मत भाग जाना। हदीस कहते यार ये सुनता है कोई बात को, बात कचरा बना दिया इसने जब से बात सही हो रही थी। जी मेरे भाई, ये रिकॉर्डिंग के साथ हदीस लगा दी जाएगी, अब हम फैसला कर लेंगे। हाँ बिल्कुल लगाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह लगाऊंगा, मगर मैं इसको अभी पढ़ के सुनाऊंगा, मगर तौबा का ऐलान करे। 1 मिनट, भाग गया क्या? ना भागेगा क्यों? हाँ, मेरा इससे सवाल ये है कि तुम तौबा का ऐलान करो जरा जनाब। मैं बता रहा हूँ कि मेरे रब ने मेरे आका के लिए इस कायनात को कफे मिसल बना दिया है, यानी जिस तरह कोई शख्स अपनी हथेली को देखता है उस तरह मेरे आका इस कायनात को देखते हैं, और मेरे आका कायनात के मालिक हैं। तो जो मालिक है वो अपनी मिल्कियत की खैर खबर रखेगा कि नहीं रखेगा? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है। ये तो हमारे हुजूर का मकाम पूछ रहा है। ये गया क्या? 1 मिनट में देखता हूँ जरा। हाँ चला गया, बताओ ये फिर से चला गया? ऐसा ही है। देखा मुसलमानों, देख लो जरा, बस अब मुसलमानों को समझा दो, बाकी ऑडियो को डाल देंगे। देखिए सामईन, किस तरीके से ये दौखला गया मुफ्ती। अब इसने क्या दावा किया था कि जब हम लोग यहाँ बात करें तो इसका इल्म हुजूर को है या नहीं। हमारा दावा यह है कि अल्लाह की अता से हमारे रसूल को हर एक चीज का इल्म है, ठीक है। और हम ये अकीदा नहीं बना सकते कि अल्लाह के रसूल नहीं है। क्यों? क्योंकि सहाबियों का अकीदे पे हम है। सहाबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुफ्तगू करते थे या कुछ बताते थे तो पूछते थे, यार साहबा तुम जानते हो इस पहाड़ी के पीछे क्या है? तो सहाबियों का अकीदा ये होता था कि अल्लाह और उसका रसूल जाने, अल्लाह और उसका रसूल जाने, ये नहीं होता था कि अल्लाह जाने। तो हमारा भी यही अकीदा है कि हमारे बारे में अगर कोई पूछेगा कि अल्लाह के रसूल को मालूम है तो अल्लाह उसका रसूल जाने। हमसे अगर कोई पूछेगा तो हमारा भी अकीदा वही है। अब मेरा पहला सवाल इससे ये है कि हिकायत औलिया में इसके बाप अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि देवबंद में झगड़ा हो गया तो कासिम नानोतवी अपनी कब्र से उठ के आए और दोनों मुफ्तियों में सुलह कराई और वापस अपनी कब्र में जाके सो गए। दूसरी किताब अशरफुल सवाने में अशरफ अली थानवी लिखता है कि शहादत के बाद एक किस्सा खानदान में मशहूर है कि मिस्र जिंदा के नाना जान घर तशरीफ लाए और मिठाई लेकर के आए, और उसके बाद अपनी बीवी से कहा कि अगर ये किसी को ना बताओगे तो यूं ही रोज आएंगे और मिठाई लेकर के आएंगे। उसके बाद सुबह उठ के उनकी बीवी ने एक इश्काल हुआ कि लोग सोचेंगे कि मिठाई कहाँ से लाए, तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने सारा हकीकत बयान कर दी। उसके बाद दादा जान दोबारा तशरीफ ना लाए तो कब्र में इसके दादा जान को किसने बताया कि तेरी बीवी ने वहां सबको बता दिया, और कासिम नानोतवी को कब्र में किसने बताया कि देवबंद में झगड़ा हो गया। तो ये सब बातें इन्होंने अपने अकाबिरों के लिए तो मान लिया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी के तौर पे उन्होंने हुजूर के लिए इनकार कर दिया है। तो ऐसे नज्म की औलादों से अपने ईमान को बचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत। देखिए अब मैं
सहाबा इकराम का अकीदा इनके सामने बयान कर दो थोड़ा सा। वो आप रिकॉर्डिंग में शुरू में बोल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी नूर भाई। अच्छा हाँ यार, रिकॉर्डिंग तो बहुत लंबी हो गई। और ये हदीसें हैं हजरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों का अंबार है मेरे पास, इल्म गैब के ताल्लुक से पूरा खजाना है बहुत सारा, समझे हजरत। जी जी, हाँ हमें ज्यादा कुछ बयान करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही हदीस में बस एक के घर से साबित हो गया, यही बहुत है हजरत, और कुछ कराने की जरूरत भी क्या है। तभी तो ये बौखला गया, अब ये फजाइल अमाल खोल के पड़ेगा। बस मुसलमानों आपको फैसला करता है, बस मैं आप सबके लिए काम करता हूँ और आप जज हो, और फैसला जज को ही करना होता है। मुसलमानों जो इन लोगों में धोखे में है, नजदियों में, वो निकल जाओ, तौबा करके मुसलमान बन जाओ। चलिए इन शैतानों से निकलो और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। बस ऐसा तो नहीं है कि तुम निकल जाओगे तो मुझे कोई जो है दौलत दे दोगे। मैं किसी दौलत के लिए तो कर नहीं रहा हूँ कि हाँ साहब जो निकलता है वो दौलत देता है, सिर्फ मैं तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए ये काम करता हूँ कि जो इन शैतानों में धोखे में हैं लोग, बस वो निकल जाएं, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, जहन्नम से अपने आप को बचा लें, इसीलिए मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।